Today we will be talking about emotional regulation, how we, so-called normal, typical people, NT people, regulate our emotions, how our kids experience emotions, what do our kids need to regulate themselves, what is the approach Sunrise Learning has been following to teach our students to work on their regulation. There is a concept called zones of regulation, which we work on. I'll introduce that concept to you. Then how we have customized the curriculum for our students that we will talk about. Then there is a course, a training course available on our training portal that I will be talking about, and the content of that course I will be talking about. So we all know what are these? These are all emotions. Happy, sad, angry, frustrated. These all are emotions. And what is emotional regulation? So when we talk about emotional regulation, what does that mean? Emotional regulation means management of emotions. Regulation means management. Regulating something is managing something. And when we talk about emotional management, then it is called emotional regulation. Emotional regulation is the ability to monitor and modulate which emotion one has, when you have the emotions, how you experience those emotions, and how you express those emotions. Okay, this is the ability to experience, to react, to express to the emotion. So regulations का मतलब होता है कि हम emotion को कितने अच्छे से समझ पाते हैं, कब वो emotion हो रहा है, उस इमोशन को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उस सिचुएशन को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जब ये इमोशन हमें फील होता है हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं और हम उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब इमोशनल रेगुलेशन का पार्ट है. व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? क्यों इम्पोर्टेंट है इमोशनल रेगुलेशन? बिकॉज इट अलाउज यू टू हैव अवेयरनेस एंड कंट्रोल ओवर व्हाट यू डू. अगर हम अपने आप को रेगुलेटेड रखते हैं इमोशनली, तो हम अवेयर रहते हैं, हमारा अपने ऊपर कंट्रोल रहता है. जब आपको गुस्सा आता है, when you feel angry, some of us lose the control, right? Can anybody who feel out of control when they are angry raise hands? When you are angry, sometimes you lose your control. How many of us are there who lose control when we are angry? Yes, many of us. So अगर हम रेगुलेट नहीं होते हैं तो हम अपना कंट्रोल खोने लगते हैं, हमारी अवेयरनेस कम होने लगती है. So emotional regulation is very very important. It will result in lower level of stress and associated with better health. अब इमेजिन कीजिए कि अगर हम अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, हमेशा ही हमें सैडनेस वाली फीलिंग रहती है, हमेशा ही हमें अपनी सैडनेस को ओवरकम करना नहीं आ रहा है, हमें नहीं पता कि हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर आए, तो लेवल ऑफ स्ट्रेस हमारा बढ़ जाएगा और हमारी हेल्थ भी इम्पैक्ट होगी, राइट? तो रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्ट्रेस लेवल को बैलेंस करने के लिए, हमारी बेटर हेल्थ के लिए. हमारे फ्रेंडशिप और हमारे रिलेशनशिप्स के लिए भी इमोशनल रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. इफ वी आर नॉट वेल रेगुलेटेड, देन our friendships, our relationships suffer. All of you agree with me कि अगर हम अपने emotions को काबू में नहीं रखना जानते हैं तो हमारे relationships, हमारी friendships affect होती है ना? So you can soothe yourself. अगर हमें regulation आती है, so then we can stay calm, we can stay focused, we can think positively, we can do productive work, we can challenge, we can be resilient in the challenging situation. तो इमोशनल रेगुलेशन अगर हमारे पास है तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, अपने आप को चैनलाइज कर सकते हैं, अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं. लेकिन अगर हम इमोशनली रेगुलेटेड नहीं है तो हमारा ये सब जो है वो ग्राफ नीचे जाना शुरू हो जाता है. This means change and stress are easier to deal with. So if you are regulated, well regulated, that means that the change and stress that happens in day-to-day life, we are ready to deal with it.
So emotional regulation is very, very important for everybody, not for our children, but for us as well. अब इमोशनल रेगुलेशन होता क्या है? इमोशनल रेगुलेशन मेनली 4 पार्ट्स होते हैं. व्हाट इमोशन, व्हेन सिचुएशन, मतलब किस सिचुएशन में क्या इमोशन आते हैं, हाउ वी एक्सपीरियंस एंड हाउ वी रिएक्ट टू द इमोशन. तो इमोशनल रेगुलेशन जो मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस होती है, दैट इज डन इन द 4 पार्ट्स. 4 पार्ट्स में होती है. 4 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट इज, first we learn how to label that emotion. So when we say happy, when we say sad, when we say frustrated, और भी बड़े डीप इमोशंस होते हैं, worried, scared, इस तरह के कुछ इमोशंस होते हैं. इनको सबसे पहले समझना, लेबल करना. अगर मुझे यही नहीं पता है कि when my body is shivering और डर होता क्या है, मतलब scared एक इमोशन है, लेकिन वो होता क्या है, अगर मुझे वो लेबल करना ही नहीं आता है, तो मेरा रेगुलेशन का एक स्टेप जो है वो मिसिंग है. तो रेगुलेशन में 4 स्टेप्स हैं. लेबलिंग, then identifying the situation, then how we experience that emotions and how we react that emotion. ये emotions को manage करने के लिए ये 4 चीजों पर हमें काम करना होता है. So what we call this emotion, first thing is identifying, labeling the emotions. Then in which situation I experience this emotion. अगर हम पहले से ही prepared हैं, जैसे कि कुछ चीजें होती हैं जिनका हमें अंदाजा होता है कि अच्छा this might happen, it might occur and I should be ready for that. So in that case, if I am aware of that situation and I know that it is going to happen and it is going to affect me this way, I am prepared and I am regulated, right? इसी तरह how I experience the emotion. अब सैडनेस किसी के लिए एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग हो सकता है, जिसमें हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे और किसी से बात करना पसंद नहीं करेंगे. कई लोग ऐसे भी होंगे जो जब बहुत ज्यादा सैड होते हैं, दे स्टार्ट ओवरवर्किंग, दे स्टार्ट वो अपने आप को और ज्यादा एंगेज करना शुरू कर देते हैं. तो हाउ डू यू एक्सपीरियंस दैट इमोशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज दैट इमोशन एंड हाउ आई एक्सप्रेस टू दीज इमोशन. तो 4 पार्ट्स में होता है इमोशनल रेगुलेशन, जो कि हम लोग सीख जाते हैं नेचुरली. लेबल करना, सिचुएशंस को भाप जाना कि अच्छा ये वाली सिचुएशन आने वाली है या ये सिचुएशन है, तो अब मुझे अपने आप को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे मैं उसको एक्सपीरियंस करता हूँ और कैसे मैं रिएक्ट करने वाला हूँ. ये 4 मेन पार्ट्स होते हैं इमोशन रेगुलेशन में. Identifying emotion is what we call this emotion. So not only identifying my own emotion, but दूसरे के इमोशन को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. That is also part of emotional regulation. ठीक है, तो अब हमें देखने से पता चल रहा है how is he feeling. Can type in the chat box. How is Shah Rukh Khan feeling? We can just see and we can say that he is feeling happy, right? Now we can just see at the picture, look at the video, and we can say he's feeling sad. Ajay Devgan is feeling angry. She's feeling jealous. Can anybody type in the chat box, how are these ladies feeling? They are feeling scared, right? डरी हुई हैं. They are feeling scared, angry, irritated. कुछ भी जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो देखते हैं, ठीक है, they are feeling scared. These friends are feeling excited. So first is labeling. तो अभी हमने लेबल किया इमोशंस को, राइट? लेबल किया कि हैप्पी है, सैड है, एक्साइटेड है, स्केयर्ड है, राइट?
Now, when do we feel what emotion? I feel happy. I feel happy when I'm with my son and we are having a good time. That is a happy feeling for me. For you, it can be a different thing, different situation where you feel happy. Some people feel happy while cooking. Some people feel happy while gardening. Some people feel happy with me time. Some people feel happy with family time. Some people feel happy when they read books. So situations are different for everyone. When do you feel sad? Similarly, sad when I'm somebody is sick at my home, then I may feel sad. When I'm away from home, I may feel sad. So these situations also are different for most of the people. When do we feel angry? That also will depend. So one situation is there, you lost your pet. Then how do you feel? You are going to a favorite place. When you go to your favorite place, you feel happy. When your husband forgets your anniversary, you may feel angry, right? And sad. Your favorite actor invites you for a date, super excited, right? So we know that which situation can put us into which emotion, right? We know that कि किस situation में हम किस emotion को experience कर सकते हैं. And how we experience the emotion? जब हम किसी इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं, इट इज आवर बॉडी एंड इट इज आवर ब्रेन दैट एक्सपीरियंसेस. जब हम हैप्पी होते हैं, देन आवर हार्ट इज एट रेगुलर स्पीड, आवर बॉडी इज एट ईज एंड वी आर फीलिंग काम, रिलैक्स. हमारी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल रहती है, रिलैक्स्ड रहती है, टाइट नहीं होती है. जब हमें गुस्सा आता है तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारी बॉडी टाइट हो जाएगी, हमारे सिर में दर्द हो जाएगा, हमारा फोरहेड इट कैन गो हॉट, माथा गर्म हो जाएगा. तो हमारी बॉडी बहुत सारे सिग्नल देती है हमें, हाउ वी एक्सपीरियंस. तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा ओके अभी मुझे गुस्सा आने लगा है. और या दूसरे को देखकर भी हमें पता चल जाता है कि अब इसके बॉडी टाइट होने लगी है, अब इसने हैंड्स ऐसे जकड़ लिए हैं, सो अभी गुस्सा आ रहा है. तो बॉडी हमारी एक्सपीरियंस करती है इमोशंस को, हमारा ब्रेन एक्सपीरियंस करता है. व्हेन वी आर हैप्पी तो हमारा ब्रेन रिलैक्स्ड होता है, काम होता है, हम अच्छे अच्छे काम करने में मन लगता है. जब हम सैड होते हैं तो हमारा किसी काम करने का मन नहीं करता, हमारा खाना खाने का मन नहीं करता. जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं तो हमारा ब्रेन कंसंट्रेट नहीं कर पाता. तो हमारी बॉडी और ब्रेन हमें सिग्नल देते हैं जिससे हमें वो इमोशंस को रेगुलेट करने में, उन्हें समझने में आसानी हो जाती है. we can identify, we know that how we are going to experience and how we are going to react to that emotion. How do we identify the emotions? Through our brain, through our body and through our experience. कुछ बॉडी से हमें पता चलता है कि ये वाला इमोशंस है, तो अभी हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, तो वी आर गोइंग थ्रू दिस फेज ऑफ इमोशन. हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है. एंड आवर एक्सपीरियंस, आवर पास्ट एक्सपीरियंस आल्सो हेल्प्स टू एक्सपीरियंस दैट इमोशन. एंड हाउ डू वी रिएक्ट? अभी हमने देखा कि हमने लेबलिंग कर लिया, हमने सिचुएशंस आइडेंटिफाई कर ली, हमने देख लिया कि हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन कैसे रिएक्ट. अब हम उस इमोशन पर रिएक्ट कैसे करते हैं? हाउ डू वी रिएक्ट टू द इमोशंस? हम रिएक्ट करने की, जब रिएक्ट करते हैं तो किसी किसी को जब गुस्सा आता है, दे विल वॉक अवे फ्रॉम दैट प्लेस, राइट? हम में से कुछ लोग होंगे जिनको जब गुस्सा आएगा, विल वॉक अवे फ्रॉम दैट प्लेस. एंड some people will be there who will not be able to cope up the anger, and they might shout, they might be angry, and in anger they might do something that they should not do. हम में से कुछ लोग हैं जो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हैं. कुछ लोग हैं जो वहां से चले जाएंगे उस समय जब गुस्सा आ रहा है. कुछ लोग होंगे जो कि उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे.
तो ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की हाउ वी रिएक्ट टू दैट सिचुएशन, राइट। तो ये सब हमारा इमोशनल रेगुलेशन का पार्ट है। जब हम रिएक्ट करते हैं, हम सो कॉल्ड एंटी पीपल, जब हम लोग इमोशनल रेगुलेशन अपने आप को मैनेज करते हैं, इमोशनल रेगुलेट करते हैं अपने आप को, सो वी आर वर्किंग ऑन दीज मेन एरियाज। अटेंशन, हमारा अटेंशन रहता है उसके ऊपर, उस सिचुएशन के ऊपर, उस इमोशंस के ऊपर पूरा ध्यान रहता है। हम अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो गुस्सा आया, मेरा भी बहुत मन किया कि मैं भी चिल्लाऊं, मैं भी चीखूं, but I tried to control my impulses and I walked away. Impulse control, adapt. I have been going through a phase where I'm not feeling good, I'm feeling sad, but I'm trying to adapt to this situation and I'm trying to come out of this situation. Somehow I am trying to मतलब उस सिचुएशन के हिसाब से कहते हैं ना, अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं हम लोग। देन प्रोसेसिंग की हम थोड़ा सा सोच लेते हैं, ओके कोई बात नहीं, उसने ऐसा कह दिया, मुझे बहुत गुस्सा आया, बट इट इज ओके। हम अपने आप को समझाते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं अपने ब्रेन में। प्लानिंग, अभी कई बार हमें पता होता है कि इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, या कई बार हमें वो रिकरिंग होते हैं सिचुएशन, तो भी प्लान कि अगर मुझे ऐसा गुस्सा आएगा तो या तो मैं काउंट करूंगा, या मैं पानी पीने चला जाऊंगा, और या मैं योगा मेडिटेशन स्टार्ट कर लेता हूँ, ताकि मेरा जो एंगर है, जो मेरा स्ट्रेस लेवल है, वो कम हो जाए। तो हम प्लानिंग भी करते हैं अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, अपने आप को एंगर मैनेजमेंट करने के लिए, अपने आप को सैडनेस से बाहर लाने के लिए। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो हम अपने आप को रेगुलेट करने के लिए करते हैं, राइट। इतनी सारी चीजें हम करते हैं। तो ये हो गया कि एक एंटी पर्सन जो है वो इमोशंस को कैसे प्रोसेस करता है, लेबलिंग करता है, सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करता है, एक्सपीरियंस करता है अपने बॉडी और अपने माइंड के थ्रू, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू, और रिएक्ट करता है। रिएक्ट में ये सब चीजें उनके काम आती हैं। अब आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं, क्या ये चीज जो हमने ये फोर स्टेप्स डिस्कस किए हमारे बच्चों के लिए इजी है? यस और नो? नहीं है ना? नहीं, हमारे बच्चों के लिए कितना डिफिकल्ट है। फर्स्ट स्टेप ही बहुत डिफिकल्ट है। हाउ, हम तो उनको क्या करते हैं, व्हाट वी यूजुअली डू, हम उनको इमोजीज के कार्ड दिखाएंगे, हैप्पी फेसेस दिखाएंगे, हैप्पी फेस वाले कार्ड दिखाएंगे, और हम उनको बोल देते हैं ये हैप्पी है। करते हैं? आप में से कितने लोग ये काम करते हैं? कार्ड दिखाया, इमोजी दिखाया और हो गया हैप्पी, दिस इज हैप्पी। क्या हैप्पी केवल इतना होता है? हमेशा स्माइलिंग फेस या वो इमोजी वाली ऐसी स्माइल? नहीं। जब हम हैप्पी होते हैं तो हम बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। हमारी बॉडी उस हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करती है, हमारा माइंड उस चीज को एक्सपीरियंस करता है, और बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जो हमें हैप्पी करती हैं। अब मेरे बच्चे को अगर हैप्पी समझना है तो उसको अपनी वो बॉडी लैंग्वेज, उसको जो ब्रेन उसको सिग्नल दे रहा है, वो उसकी बॉडी जो उसको सिग्नल दे रही है, वो भी आइडेंटिफाई करने होंगे, राइट, फर्स्ट स्टेप करने के लिए। तो हमारे बच्चों के लिए ये 4 स्टेप्स बहुत मुश्किल होते हैं। लेट अस सी, हमारे बच्चे हमसे कुछ कहना भी चाहते हैं। तो हाय, माय नेम इज मायरा, आई एम 9 years old, आई हैव ऑटिज्म, आई do not speak much. It is very difficult for me to understand the things without visuals. I love painting, dancing, singing. Usually I am always smiling. I am a happy going girl. I had a pet dog, Snuffy. I loved Snuffy so much. We played a lot. He was my best friend. One day, suddenly, Stuffy disappeared.
My parents told he will not come back. I do not understand what it means. I keep on searching for him. I do not eat or sleep. I am searching him everywhere. And when I am doing this, when I'm missing him very much, I feel like I don't have energy. I do not want to do anything. I do not want to talk to anyone. I do not want to smile. I just don't know what we call this. I just don't know how to cope up with this. I just don't know how to come back to myself. I'm trying, but I need your help. So this is a girl who has lost her pet she loved very much, and now she doesn't know. She is feeling very sad from inside. लेकिन उसको लेबलिंग नहीं आता है. वो सैड फील कर रही है, लेकिन वो बता नहीं पा रही है क्योंकि कम्युनिकेशन भी नहीं, बहुत लिमिटेड है. अब अगर हम उसके साथ एक सोशल स्टोरी करते, अगर हम उसके साथ बात करते कि ये जो फीलिंग है जब तुम्हें खाना अच्छा नहीं लग रहा है, जब तुम्हें कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, इस फीलिंग को सैड फीलिंग कहते हैं, तो लेबलिंग हो जाती. कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम सैड हो जाते हैं, एंड इट इज ओके. हम उसे सिचुएशन के बारे में familiar करा रहे हैं, so that when next time she experiences the same situation, she knows that okay, this is called sad. When your body is going low in energy, when you do not want to talk, you do not want to talk to anyone, you don't want to smile, you don't want to do anything. जब सैड होते हैं तो हमारा जो फेस है, दिखती भी है कुछ चीजें, हमारा फेस नीचे की ओर हो जाता है, हमारी बॉडी थोड़ी सी लटक जाती है. ये वाले सिग्नल अगर हम अपनी सोशल स्टोरी में उसे बता रहे हैं, एंड वी आर टेलिंग हर इट इज ओके. We can see an album where we can see pictures of Snuffy. We can plant a tree for Snuffy. Then she will be able to cope up, right? तो ये अगर हम उसे बता देते तो उसके लिए कितना इजी हो जाएगा उस सिचुएशन. इजी तो नहीं, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बट it will help her to regulate herself, and in near future if some situations come like that, then also she will be ready for that. Again, there is a boy. Hi, my name is Sally. I am 14 years old. I have autism. I don't speak much. It is difficult for me to understand the things without visuals. I like my routines very much. Changes make me feel anxious. I do not like to be hugged or touched by anyone. One day, my relatives came to visit. They started touching and hugging me. I love my relatives very much, but I don't like hugs and touch. I resisted, but they did not understand my gestures. They kept hugging and kissing, and then I got upset. I kicked and bite the relatives. I didn't know what to do. I didn't know how to control. I didn't know what other things I could have done. Right? So this boy, he resisted, but then his anger, he could not control his anger, and he bit and he hit the relatives. और उसके बाद क्या होगा, you all can imagine. Now, if this boy had been taught about the emotion regulation and labeling the emotions and calming strategies, it would have been easy for him to walk away from that situation, right? And there are many other things I go throughout the day. This is our children telling us. There are many more things I go throughout the day. Lack of sleep, touching or nagging by someone. My favorite thing is missing. Things are not organized the way I like. I don't know the steps to complete the activity. There are changes in people, things, places, and routines. Things happen that were not in my routine. I am going through physical changes. I am growing up and I'm not able to tell.
I am going through mood swings which are not in my control. I have pain, but I don't know how to tell. This is what I go throughout the day, and much more. When I'm not able to communicate, when people don't understand me, I don't understand them, when I don't know how to process the things, when I don't have control on my impulses, something starts happening to my body and my brain. I don't know what it is called. I don't know what signal my body and my mind is giving me. I don't know how to react. I start losing control. And then this happens. So how many of you experience this with your children? Most of us, right? Yes, I can see many me. Most of us go through this situation, sometimes very frequently, 2 or 3 times a day, sometimes once in a day, sometimes maybe in a week. But we all go through this situation when my children is not able to communicate, when they don't know how to regulate themselves, when they don't know how to react to that emotion, and then these things happen, and then we are just, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस सिचुएशन से बाहर आना, राइट? My child don't like to do this. I do not like to do this. बच्चा नहीं करना चाहता ये सब. हम कई बार बोल देते हैं ना, अरे इससे तो बड़ा मजा आता है मारने में, ये तो ऐसे ही थ्रो करने में बड़ा मजा आता है. वो नहीं करना चाहते. They don't like to do this. But I don't know what should I do. मुझे मारना नहीं है, बाइट नहीं करना है, मुझे टेंट्रम्स थ्रो नहीं करने हैं, मेल्ट डाउन नहीं करने हैं. They are very painful for me as well. But I do not know what should I do. अब वही रिएक्टिव प्लान जो हम लोग अपने ऊपर करते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं रिएक्टिव प्लान इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए, जिसमें हमारी अटेंशन रहती है, इम्पल्स कंट्रोल रहता है, अडेप्टिंग टू द सिचुएशन, प्रोसेसिंग ऑफ द सिचुएशन, प्रोसेसिंग द इमोशन, प्लानिंग दैट वो एंगर मैनेजमेंट हम कर लें, स्ट्रेस मैनेजमेंट हम ऑलरेडी कर लें. ये सब मेरे बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट है, ये उसके पास नहीं है. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. These things need many skills, multiple skills: attention, communication, emotional regulation, planning, receptive communication. बहुत सारी skills मिलाकर ये सब आता है. मेरे बच्चे के लिए ये समझना, what is an emotion, when I feel this emotion, how I experience, how my body and mind experience this situation, and how I react to this emotion is very, very confusing. और वो बोल रहा है वो बच्चा की, बट इफ आई एम टॉट टू आइडेंटिफाई एंड लेबल द इमोशन. अगर मुझे आइडेंटिफाई करना आएगा, इमोशंस को लेबल करना आएगा, अगर मुझे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट लाइक फीलिंग एंड इमोशंस रिप्रेजेंटेड द वे आई लर्न, इस तरह से मुझे सिखाए जाए जिस तरह से मैं सीखता हूँ, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं. अगर मुझे ये मेरे तरीके से सिखाए जाए, अगर मुझे पहले से ही पता हो कि ये डिफिकल्ट सिचुएशन में मुझे क्या करना है, पहले से ही मुझे प्रिपेयर किया जाए, अगर मेरे साथ बार बार कोपिंग की स्ट्रैटेजीज प्रैक्टिस की जाए, देन आई विल, अगर मेरे पास टूल्स हों जो कि मुझे बता सके कि हाउ कैन आई काम माई सेल्फ डाउन, वुड दिस हैड बीन बेटर. जो ये सिचुएशंस हमने डिस्कस की, क्या ये बेटर हो जाती, क्या ये बेटर हो जाती, हो जाती? यस.
अगर ये सब चीजें मुझे सिखाई जाती तो यस हो जाती. And this is all about emotional regulation program, which we will be talking about next. अगर ये चीजें मुझे सिखाई जाती तो क्या चीजें बेटर हो जाती. Have some parents with us who have done these calming strategies, who have practiced these tools, and we will like to hear from them that how these tools, how these calming strategies, जो अभी हमने बात की कि अगर मुझे ये सिखाया जाता तो शायद सिचुएशन बेटर हो जाती. तो हम अभी हमारे साथ अरुंधति है. So I'll start with Arundhati. We would like to know that you have been practicing zones of regulation for a year now. Yes. So can you tell us the situation before and situation after the zones of regulation? Yes. Last year we started. So before that, I would show him only those pictures like you told, emojis. ये happy है, ये sad है. बस उतना ही दिखाया था मैंने emotions के लिए. But after your course and during the course, जो आपने videos के through, detailed description के through each of the emotion in different situation जो आपने किया, that really helped him to identify the body language and the emotions का identify. It's still a process sometimes जब वो बहुत excited हो जाता है या बहुत गुस्से में आता है, but it has helped so much कि वो at least he is able to calm down himself, find a soft, find a quiet corner. And the biggest help has been the chart जो उसके रूम में लगाया हुआ है, and he keeps looking at it. And sometimes he comes and tells, Amma, today I'm in the blue zone. It makes me feel so happy. Sorry, I'm in the green zone whenever he's happy, or when he's sick or tired, he will come and say, I'm in this zone. It has helped him a lot. It has made a huge difference compared to before and after. It's still an ongoing, So has he learned labeling the emotions? At least. Yes, to some extent. To some extent, yes. Situations, handling. Experiencing from his own experience, from his brain and body. इंसानों की तरह बैठ जा, बंदरों की तरह मत जंप कर. भूख लगा है. Who is this? Okay, and he has started acknowledging the experience he is getting from his body and his brain signals. उसको पता चल रहा है कि yes, there is a change in how he is feeling. Yes. And what tools, the calming tools you have been using? It's breathing, Om, music, and he has found his own way of finding हमने एक quiet zone बनाया है. He also found his own, which he likes, and he goes there and quiets himself or does some things that calms him down, and then he will come back. So he has found his own routine also, along with the things that had been taught to him. But he understands कि कुछ तो हो रहा है मेरे body में, or I want to come out of it. So how old is Gaurav? Abhi 15 years. 15, and he is growing. He also has growing up challenges, right? Yes, 13, 14, that was the biggest challenge. Has this regulation helped him in coping up with the growing up changes? Yes, definitely, because sometimes there are unexplained, at least for us, we don't know what caused it, why there are sudden mood swings, anger and things. So that was a lot. It, adolescence, 13, 14 was really, really hard. And he just turned 15 in May. So we all have been through that. Yeah. So that year, I was clueless before this course, and we were struggling to figure out what to do, but it has helped a lot. And I think it has really helped him and us as a family also. It's not just him. We all have done that, exercises for as a family. It really helped us also. Yeah.
Thank you so much, Arundhati. Nice to hear from you. Thank you. Now I'll go to Shreyansh Mama. You are there? Yes, ma'am. Yes. Can you, Shreyansh is a Sunrise Learning student, and we have been practicing zones of regulation and emotional regulation for last 3 years. And we had many anger issues with Shreyansh, and how these zones of regulation has helped him to cope up and come out of that phase. So Shreyansh Mama, आप थोड़ा सा बता सकते हो उसके बारे में? यस मैम, श्रेयांश को जो है ना, मतलब काफी इससे हेल्प मिला है। जब हम लोग जो नोटिस कर रहे हैं लास्ट 2-3 मंथ्स, तो काफी मतलब इम्प्रूवमेंट लग रहा है। अभी आज मॉर्निंग की बात है, बहुत मतलब स्कूल जाते समय पता नहीं किस चीज के लिए एग्रेसिव हो गया, मतलब अपने वो टैबलेट जो देखता है ना उस पे बहुत जोर से मार दिया। फिर वो उसको हमने वो बोला कि डीप ब्रीथ लो, तो उसने किया। फिर अपने से ही काउंटिंग भी उसने शुरू की, तो उसके बाद काफी मतलब शांत हो गया, मतलब अपने आप को कंट्रोल में कर लिया है। तो बहुत आज भी पता नहीं क्यों बहुत एग्रेसिव हो गया था मॉर्निंग में स्कूल जाते समय। कई बार जैसा बताया भी इन्होंने, कई बार हमें पता नहीं चल पाता है कि क्या चीजें उसको अच्छी नहीं लगी, आसपास में क्या उसको मतलब चाहिए था, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाता कभी। तो कभी तो बता देता है कि हाँ मुझे ये चीजें चाहिए या कुछ चाहिए वाला सॉक्स हमें पहनना है, कभी वो नहीं बता पाता। एक पर्टिकुलर कलर को लेके भी हो जाता है परेशान, तो कई बार बोल देगा कि हाँ ग्रे कलर वाला मुझे पहनना। उस दिन तो हमें पता चल जाता है कि हाँ इसको तो, लेकिन कई बार वो नहीं बता पाता। तो उसको लेके भी ना बहुत इधर उधर भागेगा, परेशान होगा, किसी चीज पर टैप करेगा, मतलब एग्रेसिव मोड में आ जाता है। तो फिर उसको वही करना पड़ता है, एक जगह बैठाए, फिर बोलते हैं कि आप डीप ब्रीथ लो, काउंटिंग करो। कभी पानी भी अगर पीना होता है तो पानी पी लेता है, ओम चैंट कर लिया। तो काफी मतलब, और डीप ब्रीथिंग वाला तो काफी इफेक्टिव है। मतलब हमने देखा है कि जब भी हमने कराया और काउंटिंग 100 तक, उसके बाद मतलब आ जाता है वो कंट्रोल में, अपने आप को काफी हद तक कर लेता है कंट्रोल में। तो बहुत हमें तो अभी मतलब कभी अभी तक तो बहुत उससे मिला है रिलीफ, मतलब बहुत अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। पहले के जो मतलब लास्ट ईयर जिस तरह के फेज में थे हम, कि एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था, मतलब हमें समझ में नहीं आता था कि हम कैसे इसको काम करें, कैसे एक जगह उसको बैठा। वो चीजें काफी हद तक दूर हुई है, बहुत हमें तो मतलब काफी फायदा हुआ है। फिर मैं रिमाइंड भी करती हूँ कि वंदना मैम क्या बोली है, तो फिर वो अपने आप को काफी हद तक कंट्रोल करता है, मतलब याद करता है कि कैसे हमको रहना चाहिए। तो टूल्स हेल्प कर रहे हैं, टूल्स जो हम यूज करते हैं, लेबलिंग करते हैं, वो हेल्प करते हैं, राइट? या मैम बहुत बहुत मिलता है, काफी हद तक कर लेता है अपने आप को कंट्रोल। Thank you, Shreyansh Mama. So we have another parent. She Gomti's mama. Are you there, Bhuvna di? Yes. Gomti is an adult who is 22 years old, right? 25 की हो गई, 25 years old, and we have been practicing zones of regulation with her. So Bhuvna di, will you like to explain any situation जहाँ पर zones of regulation में उससे बहुत ज्यादा help हुई उसको बाहर आने में? कोई एक situation? नहीं, actually mostly her problem is anxiety. उसी में उसको बड़ी दिक्कत होती थी कि she could not control me. Actually उसको समझ ही नहीं आता था what I had to do. तो फिर वो चीज उसको बड़ी प्रॉब्लम होती थी। देन अभी क्या होता है, नाउ एटलीस्ट शी स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग, लेबलिंग तो हो जाती है एवरीथिंग, आई एम हैंग्री, आई एम हैप्पी, एवरीथिंग। और नाउ एक्चुअली वो देन अनदर थिंग, द काउंटिंग ब्रीथिंग डजंट हेल्प हर, शी विल नॉट डू इट, वो नहीं करती। देन आई स्टार्टेड कि उसके लिए जो कन्वीनियंट, आई स्टार्टेड गिविंग हर वाटर फर्स्ट, और यू गो टू योर रूम, स्विच योर एसी and you take rest. बस मैं दरवाजा बंद करके आ जाती थी। Then after 10-15 minutes she gets calmed down. तो वो बहुत हेल्प आया मुझे। Then only one self वो रेगुलेट ये करती है कि sometimes when she gets so stressed वो बहुत स्वेटिंग शुरू हो जाता है। Then उसकी सारी जो कास्टर अंडरगारमेंट्स it gets drenched, बहुत ज्यादा।
पहले तो बहुत प्रॉब्लम उसको होता था कि उससे नाउ शी व्हाट शी डज कि वो अपना रूम में जाकर अपना फर्स्ट अंडरगारमेंट चेंज करती है। नाउ शी अंडरस्टैंड कि इसको चेंज करने से मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो दैट सेल्फ रेगुलेशन में वो आ गया कि जस्ट शी गोज टू हर रूम और अपना चेंज कर लेते हैं। बट बाकी चीजें तो वो आइडेंटिफाई कर पा रही है ना कि मेरी बॉडी मेरे को ये बता रही है, मेरी बॉडी और मेरा ब्रेन जो है वो एंशियस हो रहा है और ये सिग्नल एंजाइटी के आ रहे हैं मुझे, मैं येलो जोन में जा रही हूँ। अब येलो जोन से बाहर आने के लिए मुझे रूम में जाना है, चेंज करना है, पानी पीना है, एसी चलाना है, राइट? देन आफ्टर 10 और कभी-कभी वो म्यूजिक भी हल्का से चला के आ जाए। तो वो हमने जो चार स्टेप्स किए, लेबलिंग, सिचुएशन हैंडलिंग, देन एक्सपीरियंसिंग एंड देन हाउ टू रिएक्ट, वो चारों स्टेप्स कहीं ना कहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इवन दो फुल्ली नहीं, एटलीस्ट वो अपना मैनेज तो हो पा रहा है एटलीस्ट, क्योंकि शुरू से दिस वाज दैट, बिकॉज उस टाइम तो कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होता। when she gets so upset then वो हिटिंग में चला जाता। now at least she is not doing any self hitting, but पहले तो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। पहले तो वो अपने आप को पहले फर्स्ट अंडरस्टैंड नहीं कर पाती। नाउ शी इज अंडरस्टैंडिंग एंड शी नोज कि कुछ तो सोल्यूशन है कि एटलीस्ट आई कैन हैंडल, एटलीस्ट माय मम्मा कैन हैंडल। दैट इज द मेन थिंग। सो उससे काफी वो जो इसका जो एपिसोड्स काफी कम हो। डेफिनेटली थैंक यू सो मच, इट इज वेरी हेल्पफुल। बहुत वो मैं इसके पहले तो लेबल तो कर लेती थी, आई एम सैड, आई एम हैप्पी, आई एम एवरीथिंग, बट हाउ टू हैंडल इट वो थोड़ा दिक्कत होता था। नाउ एटलीस्ट फॉर her stress level it is very helpful. Thank you so much. Thank you so much for sharing. Any other parent who is there? I am not able to find out एक करके. So any other parent who has done zones of regulation and would like to talk about it, or who has done emotional regulation in some other way would like to talk about it? Good afternoon, ma'am. Ari's father. Yeah, hi, hello. Hello, ma'am. Yes, Aris has also done emotional regulation last year, first batch. Yes, ma'am. Actually, मैं पिछले साल से जो कोर्स इन्होंने किया इमोशनल रेगुलेशन का, तो वो जो लेवलिंग आपने बताया था और जोन बताया था, डिफरेंट जोन, तो एक बताया जाए एक अलग से बेनिफिट इसमें ये हुआ कि खुद ही समझ पा रहा है कि हम किस जोन में हैं। अगर ओवर हैप्पी है तो अपने आप को खुद बोलता है कि हम अभी जो है ग्रीन जोन में हैं, और थोड़ा सा पैनिक हो जाता है तो पहचानता है कि हम किस जोन में आ गए हैं। फिर उसको कैसे शॉर्ट आउट किया जाए, तो उसका जैसे आपने बताया था कि ऑलमोस्ट के एक अकेले रूम में कॉर्नर पर उसको भेज दिया जाए, तो वहां पर हम लोग जब भेजते हैं तो वहां पर कुछ देर के बाद वो शांत हो जाता है, जब ज्यादा पैनिक हो जाने पर। जब ये फिर समझता है कि हम जो है नाउ वी कम फ्रॉम ब्लू जोन टू ग्रीन जोन, उसके बाद ये खुद आकर बोलता है कि मेरा जोन कन्वर्ट हुआ है, अपने ही लैंग्वेज में, टूटे फूटे लैंग्वेज में, साफ तो क्लैरिटी नहीं है। तो ये सब फायदे हुए हैं इसको, इस इमोशनल रेगुलेशन से। सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन और कंडीशन की, किस कंडीशन में है। हम लोग बोलते भी ज्यादा, अगर ये ओवर रिएक्ट करने लगता है तो बोलते हैं कि नाउ यू आर इन रेड जोन या येलो जोन, प्लीज ट्राई टू कम इन ग्रीन जोन। और धीरे धीरे, या नहीं हो पाता है तो डीप ब्रीदिंग में कराता हूँ इसको अक्सर, उससे थोड़ा सा फायदा मिलता है। और यही है बेनिफिट तो है ऐसे काफी हद तक। Consistency and practice also matters a lot, right? जी मैम। अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे तो हमारे बच्चे सीख जाते हैं, सब कुछ सीख जाते हैं। जी। Thank you so much, Arish Papa. Thank you so much. Thank you. Okay, so now zones of regulation क्या होता है? I'll give a brief about that. And what is we have a course about emotional regulation. वो course क्या है, वो कैसे आप कर सकते हैं, उसके बारे में I'll give you brief introduction. जैसा कि अभी आपने सभी पेरेंट्स को सुना, and there are like we have all the students in Sunrise Learning, हमारे छोटे से लेकर और वोकेशनल और एम्प्लॉयमेंट रेडीनेस प्रोग्राम तक के स्टूडेंट्स जो है वो इमोशनल रेगुलेशन
उनके साथ किया जाता है इमोशनल रेगुलेशन. इट इज पार्ट ऑफ देयर करिकुलम एंड दे हैव इमोशनल रेगुलेशन क्लासेस, दे हैव प्रैक्टिस एंड कामिंग कॉर्नर्स, कामिंग स्ट्रेटेजी, सब कुछ जो है वो उनके साथ स्कूल में किया जाता है. अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि ये होता क्या है जोन्स ऑफ रेगुलेशन. जब हम जोन्स ऑफ रेगुलेशन की बात करते हैं तो जोन्स ऑफ रेगुलेशन जो है ये एक सोशल इमोशनल लर्निंग फ्रेमवर्क है, एक पाथवे है टू रेगुलेशन. दिस जोन्स ऑफ रेगुलेशन हैज बीन क्रिएटेड बाय ली कूपर्स हु इज in US and she's MA at OT. उन्होंने एक बुक लिखी है जोन्स ऑफ रेगुलेशन, और ये जोन्स ऑफ रेगुलेशन बहुत सारी जगह प्रैक्टिस किया जाता है वेस्ट कंट्रीज में. इंडिया में भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं ये जोन्स ऑफ रेगुलेशन का फ्रेमवर्क. इट इज एन अप्रोच यूज्ड टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन इन चिल्ड्रन. ये स्पेशल नीड्स के लिए नहीं किया था, ये सबके लिए किया गया था. ये जो फ्रेमवर्क है जिसमें बच्चों को अपने आप को कैसे रेगुलेट करना है ये सिखाया जाता है, सेल्फ रेगुलेशन सिखाई जाती है. All the different ways children feel and states of alertness they experience are catered into 4 colored zones. जितनी भी जो फीलिंग्स हैं, स्टेट ऑफ अलर्टनेस है, उसको हम 4 कलर जोन्स में डिवाइड कर देते हैं. क्योंकि इमोशन और फीलिंग बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट इमोशंस और फीलिंग्स जब तक हम खुद से नहीं एक्सपीरियंस करते, जब हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन को तब तक जब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, तो वो समझना बहुत मुश्किल होता है, एब्स्ट्रैक्ट है बहुत ज्यादा. तो उसको कॉन्क्रीट बनाने के लिए कलर्ड जोन्स यूज किए जाते हैं. दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. ये जो अप्रोच है ये CBT आपने सुना होगा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ऊपर बेस्ड है. This framework is designed to help move students toward more independent regulation, also honoring and respecting each student and their unique self. ये प्रोग्राम का जो मोटिव है वो इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेशन और हर एक बच्चे की यूनिक सेल्फ को रिस्पेक्ट करते हुए उनको रेगुलेट करना सिखाना, ये उसके ऊपर काम करता है. लिंक है इसका जोन्स ऑफ रेगुलेशन का. जोन्स ऑफ रेगुलेशन करने से क्या फायदा होता है? एक तो ये कंसेप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, वो उसको कॉन्क्रीट कर देता है, कंसेप्ट बेस्ड कर देता है. CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को यूज करके, उसकी अप्रोच को यूज करके बनाया गया है. ब्रेक डाउन एब्स्ट्रैक्ट सोशल कॉन्सेप्ट्स इनटू कंक्रीट विजुअल्स. इसमें बहुत सारे विजुअल्स यूज होते हैं, बहुत सारे कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं. These focus on building skills with underlying problems. तो हमें एक स्किल सिखाई जाती है. इमोशनल रेगुलेशन एक लाइफ लॉन्ग स्किल है जो एक बार अगर आ जाए तो हमारी पूरी लाइफ में हमें अच्छे से अगर इमोशन रेगुलेट करने आ गए तो हमारी लाइफ इजी होती जाएगी आगे. ये इम्पल्स कंट्रोल सिखाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर भी काम करता है. जोन्स ऑफ रेगुलेशन में अभी मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आई जस्ट गिविंग अ ब्रीफ. जोन्स ऑफ रेगुलेशन में हम इमोशंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड. हम ब्लू में बॉडी सिग्नल्स क्या होते हैं, ब्रेन के सिग्नल क्या होते हैं, उसके बेसिस पर ये डिवीजन की जाती है. तो ब्लू जोन में हमारी बॉडी स्लो चलती है, हम टायर्ड फील करते हैं, बीमार होते हैं, बोर होते हैं. ग्रीन जोन मतलब हैप्पी जोन, ग्रीन लाइट की तरह वी आर रेडी टू गो. येलो जोन जैसे ट्रैफिक की लाइट्स होती है, अगर हम उसके साथ इसको कंपेयर करें तो ये काफी कुछ उससे सिमिलर है, ये जो कलर्स हैं. ठीक है, ब्लू नहीं होता है तो इसमें एक एक्स्ट्रा कलर है ब्लू. अदरवाइज जैसे ग्रीन, ग्रीन का मतलब क्या होता है, गो. ऐसे ही जब ग्रीन में हम जितने भी इमोशंस आते हैं वो हमें ये सिग्नल देते हैं कि आप रेडी टू गो हो, आप अच्छे से काम कर सकते हो, आप आज सेटल्ड हो, आज आप हैप्पी हो, आज आप पूरी बात सुनने के लिए तैयार. येलो जोन जब आता है, येलो लाइट आता है, तो जब हम एकदम से तेजी से जा रहे होते हैं तो हमें बोलते हैं ना स्लो कर लीजिए, अब स्लो डाउन कर लीजिए वरना एक्सीडेंट हो जाएगा. तो इसी तरह से जो येलो जोन होता है वो हमें बोलता है कि कॉशियस हो जाइए, स्लो डाउन कर लीजिए, अदरवाइज देयर विल बी अ मेल्टडाउन.
रेड जोन जो होता है वो एक्सट्रीम कंडीशन होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ट्रबल मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में। तो रेड जोन हमें बोलता है स्टॉप, अब रुक जाओ, कुछ भी मत करो, जहां हो वहीं के वहीं ठहर जाओ, ये बताता है हमें रेड जोन। जो इमोशंस आते हैं हमारे ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड में, ब्लू में आते हैं सिक, टायर्ड, सैड, मूविंग स्लो। ग्रीन में हैप्पी, काम, फोकस्ड। येलो में वरीड, एनॉयड, फ्रस्ट्रेटेड। रेड में तो बिल्कुल जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया वो रेड। ब्लू जोन में हमें स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है, येलो जोन में हमें स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। ग्रीन जोन क्योंकि हम हैप्पी हैं, हम ऑलरेडी रेडी हैं सब काम करने के लिए, तो कोई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है। ब्लू जोन में हम सैड हैं, टायर्ड हैं, तो हमें उस टायर्डनेस से, सैडनेस से बाहर आने के लिए एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है। येलो जोन में भी हमें स्ट्रैटेजी की जरूरत है ताकि हम वापस जा सकें ग्रीन में, क्योंकि अभी हम इतना गुस्सा नहीं हुए हैं, अभी हम अपने कंट्रोल में हैं। रेड जोन जब आता है तो कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं आती है। आप सबको पता ही होगा, जब भी हमारे बच्चे मेल्टडाउन होता है तो बोला जाता है कि आपको कुछ नहीं करना, मेल्टडाउन हो रहा है, अब आप कुछ नहीं करोगे, उसमें कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आती। तो ये आउट ऑफ कंट्रोल जो होता है वो रेड जोन। ठीक है, तो ये जोन्स ऑफ रेगुलेशन का ब्रीफ ओवरव्यू है कि जिसमें कलर्स के हिसाब से आपकी फीलिंग्स को बांटा जाता है। हम कैसे कर रहे हैं सनराइज लर्निंग में जोन्स ऑफ रेगुलेशन? जो करिकुलम ली कूपर ने बनाया है, दिस इज अ वेरी गुड, वेरी नाइस फ्रेमवर्क। वो एक फ्रेमवर्क उन्होंने दे दिया हमारे बच्चों। वो फ्रेमवर्क जो है वो स्पेशल नीड बच्चों के लिए तो नहीं बना, वो तो सबके लिए बना है। सब बच्चों के लिए है कि हम आपको अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कैसे करते हैं। और उस करिकुलम को एक्सेस करना वेरी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, तो वो एक्सेस करना भी बहुत मुश्किल था, और ना ही वो सिचुएशंस जो कि यूएस की सिचुएशंस थी वो हमारे बच्चों पर फिट बैठ रही थी। तो हमने क्या किया, हमने उस करिकुलम का जो फ्रेमवर्क हमें ली कूपर ने दिया, हमने उसको कस्टमाइज किया। कस्टमाइज करके हमने अपने बच्चों के हिसाब से कस्टमाइज सिचुएशन उसमें डाली। कस्टमाइज्ड वर्जन हमारे कल्चर, हमारी सिचुएशन के हिसाब से। हमने कलर्स को ट्रैफिक सिग्नल के साथ एसोसिएट कर दिया ताकि हमारे बच्चे उसको और अच्छे से समझ पाए। हर एक इमोशंस को, हर एक जोन को डिटेल में बताने की कोशिश की गई। जितने सिनारियोज हम सोच सकते थे, जितनी सिचुएशन हम अपने बच्चों के हिसाब से सोच सकते थे, हमने कोशिश की कि हर जोन में हम उतनी सिचुएशंस, उतने सिनारियोज डिस्कस करें अपने बच्चों के साथ। Every strategy has been simplified with the help of visual so that our kids can understand a better way. हर स्ट्रैटेजी को भी हमने विजुअल का सपोर्ट दिया ताकि हमारे बच्चे समझ पाए कि करना क्या है। जैसे उसमें लिखा है कि कामिंग स्ट्रैटेजी में आप एक कामिंग कॉर्नर में जाकर बैठ जाइए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, काउंट टू 10 कीजिए, पानी पीजिए। लेकिन हमने क्या किया, हमने उसी को विजुअल्स और एनिमेशंस के साथ और सिंप्लीफाई कर दिया ताकि मेरे बच्चे को समझ में आ जाए। येलो लाइट हो गई ऑन, अब जाना है पानी पीना है, अब जाना है ब्रीदिंग करनी है, कामिंग कॉर्नर में जाके बैठ जाना है। कम्युनिकेटिंग द इमोशंस, हमने जब आप कोर्स करोगे तो जब भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है कि हर इमोशंस को बताना है, चाहे आप वर्बल हो या नॉन वर्बल हो। अगर आप वर्बल हो तो आपको क्या बोलना है ये बताया गया है। अगर आप आवाज यूज करते हो, पिक्स पैक्स यूज करते हो, कोई टाइपिंग यूज करते हो, तो आप कैसे बता सकते हो वो बताया गया है। हम स्ट्रैटेजीज को डेमोन्स्ट्रेट करके बताया गया है, और हमने कोशिश की है कि हमारे बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग हो, फन हो। वो हमने पूरी कोशिश की है इस जोन्स ऑफ रेगुलेशन को करने के लिए। तो अभी मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा, एक मिनट क्या हो गया, एक छोटा सा वीडियो शेयर करूंगी।
ये काफी है जो स्कूल में प्रैक्टिस किया जाता है। अभी इस टाइम पे केवल प्रैक्टिस चल रही है, ये इस टाइम पर रियल नहीं है, क्योंकि रियल टाइम पर वी कैन नॉट टेक वीडियोस। उस टाइम पे तो हम बस स्ट्रेटजी से काम कर सकते हैं। सिखाया जा रहा है कि अगर ऐसा होगा तो तुम्हें क्या करना है। इससे पहले एक वीडियो लेसन किया बच्चों के साथ, येलो जोन के बारे में बताया गया, एंड देन वी आर प्रैक्टिसिंग द स्ट्रेटजीज। क्या क्या आप कर सकते हो अगर आप येलो जोन में चले जाओगे? तो एक कामिंग कॉर्नर रहता है बच्चों का, जहां पर ये सब लगा रहता है। तो वहां पर जब भी आप येलो जोन में जा रहे हो तो आप वहां पर कामिंग कॉर्नर में जाओगे, ये सारे विजुअल्स लगे होंगे। आपको क्या क्या करना है, आप वो काम कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजीज को आपको फॉलो करना है, जैसे हम एक टिपिकल वर्क स्टेशन में करते हैं। तो ये एक वर्क स्टेशन है जो कामिंग कॉर्नर के लिए, कामिंग स्ट्रैटेजीज के लिए है। अभी प्रैक्टिसिंग विद द स्टूडेंट एंड देन इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ग्रेजुअली। तो अब ये हो गया है कि बच्चे का कार्ड लाकर अपने टीचर को दे देते हैं, एंड देन द टीचर हेल्प्स देम टू मूव टू द कामिंग कॉर्नर। So I hope this is clear. Now this is another way of doing. I'm just sharing. Just give me 1 minute. मैम मुझे 1 मिनट। क्वेश्चन आंसर मैं लास्ट में ले लूंगी। Be complete. On everything you need to know for your मेरा नाम सोनाली है और मैं आज बहुत सैड हूँ। I am really sad today. I'm feeling very low. You know my pet dog Danny? He is really unwell. वो बहुत बीमार है Danny, मेरा pet dog. And my mom told me he is about to leave us. मम्मा ने कहा कि वो हमें छोड़ के जाने वाला है। He is going to leave us forever, for good. वो हमेशा के लिए चला जाएगा। He is in pain. उसको बहुत दर्द हो रहा है। And he is so sick and unwell. वो बहुत बीमार है, बहुत बीमार। वो बस जाने वाला है। I'll just stop the video now. I really love him. इस तरह के वीडियोस बनाए गए हैं जो कि शेयर किए जाते हैं स्टूडेंट के साथ, सो दैट वो समझ पाए सिचुएशंस को। इस तरह के सिचुएशन वीडियोस, स्टोरीज वी डू विद द स्टूडेंट्स, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है इस सिचुएशन में, हम क्या कर सकते हैं। ये सब सिखाने के लिए ये करिकुलम हमारा। Okay. Now, this is how emotional regulation works. आपको वो 4 स्टेप्स करने होते हैं इमोशनल रेगुलेशन में, चाहे आप वो जोन्स ऑफ रेगुलेशन से करिए, चाहे आप कोई और तरीके से कीजिए, लेकिन 4 स्टेप्स, लेबलिंग, सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना, एक्सपीरियंस करना और रिएक्ट करना, ये 4 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इमोशनल रेगुलेशन के लिए, और हमें इन 4 स्टेप्स पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब जो ये कोर्स है, ये इसका डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये ऑनलाइन कोर्स, ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के फॉर्मेट में ट्रेनिंग वीडियोस और लाइव सेशंस होंगे, उस फॉर्मेट में ये कोर्स होगा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर क्योंकि ये सेल्फ पेस्ड है,
वैसे तो 10 to 8 वीक्स हम करते हैं कोर्स का, लेकिन जो इस टाइम हम दे रहे हैं वो सेल्फ पेस्ड रहेगा। आपके साथ आपको ट्यूटोरियल्स दिए जाएंगे, आपको ट्यूटोरियल्स को देखना होगा। देन वी विल डू ऑनलाइन QA सेशंस, we will do some online sessions in between every alternate week। हमारे 2 लाइव सेशंस होंगे जो QA सेशन भी हो सकते हैं, स्टोरी टेलिंग भी हो सकते हैं, ब्रीफ ओवरव्यू भी हो सकता है उसी वीडियो ट्यूटोरियल का जो आपने देखा है। व्हाट्सएप ग्रुप का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे कोर्स के लिए, आप ऐड हो जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। उस वहां पर आप अपनी सारी क्वेरीज, आप सिचुएशंस, आपके साथ जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं इमोशनल रेगुलेशन में, वो डिस्कस कर सकते हैं। उस कोर्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है उस कोर्स वो आप डिस्कस कर सकते हैं। वी विल बी देयर टू हेल्प यू। Attendance of this course will be the student with the parent. We always encourage parent empowerment, and most of our courses are designed in such a way that parents learn and parents get empowered, and then when the parent is empowered, then the child will automatically get empowered. So हमारा मोस्टली मोड यही रहता है। तो अटेंडेंस आपका स्टूडेंट विद पेरेंट होगा। अगर आप वीक वाइज करना चाहोगे, मतलब अगर जैसे मैं गाइड करूंगी तो आपको वीक 1 में क्या करना है, वीक 2 में क्या करना है, वीक 3 में क्या करना है, ये सब आपको बताया जाएगा। वीक 4 में क्या करना है, सारे वीडियो, सारे PDF सब अवेलेबल रहेंगे पोर्टल पर, आप एक्सेस कर सकते हो। आप अपनी पेज से भी चल सकते हो। इफ यू डू नॉट वांट टू गो विद वीक 1, वीक 2, वीक 3, you can go with your own pace, and every alternate Friday there will be a QA session or a story session or a live session. That depends. So every alternate Friday will be, especially for emotional regulation, there will be a QA session for 45 minutes. Okay. So we will be meeting every 15 days. We will be meeting. Complete course fee is 5,000 for the complete course, and it has like 17 to 20 videos, and every alternate week we will be doing a live session, live Q&A session. How to register for the course? This is the link. This is the link to register for the course, and all you need is to sign up. You need to click on the link, sign up with your email ID, click the enroll now button, and it will take you to the payment gateway. And this is our belief, that this is the belief of if you will become happy when you stop react. You are always happy when you stop reacting and start controlling your emotion. So हम हैप्पी हो जाते हैं जब हम रिएक्ट करना छोड़कर अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना सीख जाते हैं। ऐसे ही हमारे बच्चे भी हैप्पी हो जाएंगे जब वो अपने आप को कंट्रोल करना और रेगुलेट करना सीख जाएंगे। तो this is all about the course. This is all about emotional regulation. Thank you so much. Now I'll take the questions. And I'll also share the link to register in the, or it will be emailed, right, Khushbu ma'am? Yes, ma'am. I've already put there in the chat if somebody wants to see it right now. Okay. And you will so for that. the link to register has been is there in the chat box, and it will be also emailed to all the participants. Any question answers, any queries you would like to? Any queries? Hi, ma'am. Yes. Yeah, hi, ma'am. This is Jaya. My daughter's name is Adya. She is 11 years old. Okay. She is autistic and she is very hyperactive. So what she does, it's not only when she is sad, but sometimes she's excited and very happy.
So then what she does, she doesn't know where she is and she doesn't understand the situation. Though she's verbal, not completely, but she whatever she needs, she says that. So she keeps jumping around. She sometimes, I don't know whether knowingly she laughs or she just laughs very loudly and jumping, rolling on the floor. When she is very happy, she does that. I don't know what to do then. So that's when it's not only when she's sad, sometimes she says, sometimes she just whips. Whipping is there, not much of problem when she is not happy, because slowly when she is becoming verbal, she says whatever she needs, though she doesn't understand the emotion. But 60-70% of time she says no, what is her issue or what she wants, though she doesn't say the thing, like her emotional condition she doesn't know. But when she is excited about something, she keeps biting her hands, she keeps laughing and jumping around. So how to work on it? She needs a strategy to deal with it, right? She first of all, she needs to identify that this is a yellow zone, this is a yellow light. Yeah, okay, ma'am. First thing is labeling. So she needs to know that excited, I'm excited, because excited is very abstract thing for children. So what we give them is yellow light, yellow card. Yellow card means that I cannot control myself. Okay? I cannot control myself. I need to stop. I need to stop right now, है ना? करना तो उसको यही है, उसको स्टॉप करना है. तो सबसे पहले तो लेबल करना सीखना होगा. So first is labeling. Then I know she has labeled, because like in this situation, what should I do if I am feeling excited? Okay, I know that I am feeling excited, but I do not have a strategy. What should I do when this happens? She needs a strategy to calm down. Okay, ma'am. Fine, because no, she likes traveling. So whenever we are going to travel, we do packing and all for 1 or 2 days. She doesn't sleep till midnight. She gets so excited. Like no, she keeps on. This was with some student. I think किसी स्टूडेंट के साथ भी यही प्रॉब्लम था जब हमने जोन्स ऑफ रेगुलेशन किया था कि वो उसको इतनी एक्साइटमेंट हो जाती थी कि सोना ही नहीं है. सो व्हाट वी विल डू, एक तो कैलेंडर पे मार्क कर देंगे कि आज जाना है ना. और अगर उसको बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है तो विल शी बी एबल टू कोप अप इफ शी इज बीइंग टोल्ड इन द मॉर्निंग अबाउट द ट्रिप? No, she is excited about packing. Then she needs a calming strategy. एक तो कैलेंडर पे मार्क तो होगा ही. And I know that you are excited about the travel, about going out. Okay. But this is the strategy. You have to, एक calming corner रहेगा, उसके कुछ sensory toys रहेंगे उसको काम करने के लिए. She can drink water. If she likes coloring, then she can color. So these are the things we need to do as a strategy. Okay, ma'am. ठीक है. Thank you, ma'am. Any other query? Okay, the age limit to enroll. We can say जब आपका बच्चा colors पहचानने लग जाए, so 7+. कलर्स की रिकॉग्निशन तो होगी कि बहुत छोटे बच्चे इतना कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे. सो 7+ should be the age. So hello? There is a question. Yeah ma'am, are you telling me? Sorry, it got hello. Yes, please. Yeah ma'am, are you telling me ये बीच में disconnect हो गया था? I couldn't hear you. No, I am just saying that you need a calming strategy. Yeah, ma'am. Got it. There is a question by somebody that my son was not like this before, but he lost his father 1 year back, and now he's aggressive. Okay.
फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लोजर इज मच नीडेड. जब अगर घर में किसी की डेथ हो जाती है, ग्रैंड पेरेंट, it's very difficult to cope up. So closure of that person is very very important. If you have not done that, please do that. Please do that. कि अब वो नहीं आएंगे, है ना? तो that is one thing we need to do. And then if the child is feeling very angry, frustrated, and emotionally he is not able to regulate, then we have to teach the child some strategies to deal with. So if he is missing his father, then we can give the strategies that if you miss your papa, then you can do these things. You can draw. If he's into drawing, then you can draw. You can see the albums. You can plant a tree for him. You can do the things he liked about you. Something like this. So strategy is उसको identify करना, अपने emotions को उस situation से deal करना सिखाना बहुत जरूरी है, और closure बहुत जरूरी है if you have not already done. Any other questions? So should we wind up then? Thank you so much. Thank you so much for the done that, but he is not understanding. Okay. धीरे धीरे आप रोज कीजिए सोशल स्टोरी, उसके साथ उसके साथ रोज उसको बताते जाइए. विद द टाइम ही लर्न. एंड कॉपिंग स्ट्रेटजीज आप उसको देंगे. कॉर्नर में बैठ सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, एल्बम देख सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो. इस तरह की कुछ टूल्स अगर हम देंगे तो वो बच्चा अपने आप को रेगुलेट करना सीख जाएगा. ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस? चैट बॉक्स में आ रहे हैं क्वेश्चंस, बट मेरे चैट बॉक्स पूरा नहीं खुल रहा. Ma'am, let me read out a question for you. Child showing anger or aggression with peer group is due to emotional. Okay, ये तो उन्होंने अच्छा ये तो कर दिया ना कि क्लोजर बहुत जरूरी है. हाँ, ये हो गया. My son starts hitting his head, very aggressive, tears his shirt from teeth, he hits me and others also. हाँ, ये भी हो गया मैम. हो गए सारे क्वेश्चंस हो गए. ओके, एक और क्वेश्चन है कि एंगर और एग्रेशन विद पीयर ग्रुप कैन बी ड्यू टू मेनी रीजंस, बट इमोशनल रेगुलेशन हैज टू बी देयर. लाइक एंगर को आइडेंटिफाई करना और उसको अपना इम्पल्स कंट्रोल करना उस टाइम पे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इट कम्स विद ऑल द 4 स्टेप्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. वो बहुत जरूरी है उसके लिए. क्यों गुस्सा आता है? इट कैन बी सम बिहेवियर इशू, इट कैन बी अ सेंसरी इशू, लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आर वी डन with the questions? No more questions? How to exactly identify if it is a meltdown or a tantrum? Sometimes it is very sudden that we're not able to identify if it is actually a meltdown or she is getting aggressive for getting something or like that. Dr. Sonali, would you like to take this? Sorry, I didn't hear the question. How to differentiate between a tantrum and a meltdown? Okay, sure. So, आप ध्यान से सोचो, एक बच्चा ने आपसे चॉकलेट मांगी या मॉल में जा रहे थे, उसने किसी चॉकलेट को टच किया और आपने कहा नहीं बच्चे अब ले ली हमने, अब नहीं लेंगे. उसने थोड़ी जिद की, आपने थोड़ा और मना किया, थोड़ा कंट्रोल बैटल बढ़ा और उस बच्चे ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया. नाउ
अब आपने इस स्टेज पे अगर उसे चॉकलेट दे दी, अच्छा ठीक है यहाँ मत लेटो भैया, चलो चलो तुम तो बस मानते ही नहीं हो, ये लो, आपने उसे चॉकलेट दे दी और उसने फटाक से चॉकलेट ले ली, रोना बंद किया, आंसू पोछे, टी शर्ट ठीक करी और आपके साथ चल पड़ा, तो दिस वॉज अ श्योर शॉर्ट टैंट्रम। यू आर श्योर कि वो बच्चा जो भी कर रहा था अपने कंट्रोल में था, डेलिबरेशन से कर रहा था, सोच समझ के कर रहा था, उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में थे और वो आपके ऊपर कंट्रोल जताने के लिए ये सब कुछ कर रहा था, तो उसने एक टैंट्रम थ्रो किया। नाउ अब यही सिचुएशन अगर होती और वो लेट जाता, रोने लगता, आप सोचते कि चल अब इसे चॉकलेट दे देती हूँ, आप उसे देने की कोशिश करते, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हो रहा है, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब वो बिखर चुका है, उसका मटका भर गया रोने के बाद, गर्मी भी हो गई, वेटिंग भी हो गई, मम्मी ने भी मना कर दिया, भूख भी बहुत लगी थी मुझे और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था इसके बाद क्या होना है, बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम किया और उसके बाद जब वो बिखरा और वो रोया और वो बहुत जमीन पे लेटा, उसका एक ऐसा मेल्टडाउन आया, ऐसा आउटबर्स्ट आया जो उसके कंट्रोल में नहीं, अब वो संभाल नहीं पा रहा है, वो चाह के भी अपने आप को कंट्रोल करके आपके हाथ से चॉकलेट लेके ठीक फील नहीं कर पा रहा है। दैट इज अ मेल्ट डाउन। जब हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं चीजें, चाहे वो ऐसे फैक्टर्स हों जो कि टैंजिबल ना हो, जैसे कि कोई सेंसरी बहुत सारे ट्रिगर्स हो गए, भूख लग गई, प्यास लग गई, वेटिंग बहुत ज्यादा हो गई, बहुत जोर से डांट दिया, बहुत जोर से आवाज आ गई, डर गए किसी भी वजह से, उन सब ट्रिगर्स की वजह से मेल्टडाउन हो सकता है, सेंसरी मेल्टडाउन या इमोशनल मेल्टडाउन। अल्टीमेटली इट लुक्स लाइक अनकंट्रोल्ड सिचुएशन जो कि वो जानबूझ के नहीं कर रहा है। सो टैंट्रम और मेल्टडाउन में मेन जो कोर डिफरेंस है वो ये है कि टैंट्रम वो बच्चा अपने कंट्रोल में रह के कर पाता है, कर रहा है आपको कंट्रोल करने के लिए, या कोई भी बड़ा आदमी भी, और मेल्टडाउन किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता, इट इज एन आउटबर्स्ट जो मटका भरने की वजह से हो जा रहा है। I hope this is simple and clear. Yes, ma'am. So, then can it be like if can there be situations when a tantrum actually leads to a meltdown? Yes. Loads of them. This is why हम emotional regulation इतना ज़्यादा करते हैं, specifically for autism. Autism एक ऐसी condition है जिसमें volatile situations आ रही हैं बार बार। मेरे बच्चे को डिसरेगुलेटेड स्टेट बहुत ज्यादा ऑफन पाया जाता है, वो डिसरेगुलेटेड स्टेट में, क्योंकि वो ऑप्टिमल लेवल पे नहीं रह पाता। आई जस्ट टर्न ऑन माय वीडियो फॉर अ सेकेंड। ओके, सो दिस सिचुएशन इज ऑप्टिमल। हम सब लोग अगर एक ऑप्टिमल स्टेट ऑफ इमोशनल स्टेट में हैं, दैट्स आवर ग्रीन जोन। अब अगर हम ओवर एक्साइटेड, ज्यादा एनर्जी वाले लेवल पे हैं, ज्यादा तेजी से हमारे न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा एक्साइटमेंट, ज्यादा एंजाइटी, तो देन वी आर इन द येलो जोन। तो हमें रीसेट करके वापस ग्रीन जोन में लाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर लो एनर्जी, थकान, नींद, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, वो अगर वो स्टेट में है तो वी आर इन द ब्लू जोन, फिर से रीसेट करके ग्रीन जोन में लाना पड़ता है। तो मैम ने जो हमें अभी सारा रेगुलेशन की कहानी सुनाई, वो इसीलिए सुनाई क्योंकि हमारे बच्चों की मेन डिफिकल्टी ये है कि वो बहुत ज्यादा येलो या ब्लू जोन में चले जाते हैं और उनको रीसेट करना अपने आप से नहीं आता है, ऑप्टिमल स्टेट ऑफ इमोशंस में रहना नहीं आ पाता है। तो इसलिए हमें इतना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से, सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप तरीके से उनको इमोशनल रेगुलेशन सिखाने की जरूरत है। That is why it's the need. तो जब वो बहुत देर तक टैंट्रम थ्रो कर रहा है तो उसके बाद उसका ब्रेन डिसरेगुलेट हो गया, वो ऑटोमेटिकली अब वो मेल्टडाउन में चला गया, अब उसके कंट्रोल में नहीं है। शुरू में तो उसने खूब किया, दिला दो बहुत का, बट लाइक आई सेड, so many factors वो ट्रिगर कर गए and then it leads to a full-fledged meltdown. So येलो जोन को पहचानना कि ये परेशान हो रहा है, इसकी एंजाइटी बहुत ज्यादा लेवल पे जा रही है, हमारी कंट्रोल बैटल हो रही है, होने वाली है, और पहले ही हमें ग्रीन जोन में ले आना है, उसको रीसेट करना सिखाना है। पहले हम को रेगुलेट करना सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे उसको सेल्फ रेगुलेशन सिखा देंगे सो दैट वो वापस से ग्रीन जोन में आ जाए। दैट्स व्हाट द एंटायर स्टोरी इज अबाउट, है ना? मेकिंग सेंस? Oh yes, ma'am. So it helps both in emotional regulation, helps to deal both with the tantrum and meltdown. That's what it is exactly, right? Their emotional if you do emotional regulation, तो tantrum meltdown वाली स्टेज बहुत
the frequency of meltdowns go down. तो हम येलो में, क्योंकि अगर हमने येलो में ही अपने आप को कंट्रोल कर दिया, येलो इज caution, stop, take care, you need to stop, then रेड वाला आएगा ही नहीं, because we are already done, we have already gone from yellow to green, so हम रेड में नहीं जाएंगे. And that we have experienced with many of the children कि उनका रेड बहुत कम हो गया. रेड में तो हमें कुछ करना ही नहीं होता है, as explained, no strategy. Yellow is a strategy zone and blue is a strategy zone. So रेड में तो हमें कुछ करना ही नहीं है. तो रेड आता ही नहीं है. जब बच्चे इतना रेगुलेट करने लग जाते हैं, वो येलो से ही ग्रीन में वापस हो जाते हैं. Okay, ma'am. Thank you. Thank you for explaining. Thank you so much, everyone, for your time and your patience. The registration link will be emailed to you, and for all the registered participants, there will be a live QA session on 18th August. Thank you again. Thank you, Vandana ma'am. Thank you so much. Thank you everyone for participating. Thank you everyone for trying and attempting to participate in an event जिससे कि हम सब लोग emotional regulation की तरफ बढ़ पाए. So thank you and thank you so much, Vandana. Thank you everyone. Thank you.